چھوٹوں پر شفقت اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے جو انسان کو زندگی کے ہر پہلو میں خوبصورت مہذب اور بااخلاق بناتا ہے۔ اس دین رحمت نے نہ صرف بڑوں کے حقوق بیان کیے ہیں بلکہ چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک، نرمی، شفقت اور محبت کو بھی بہت اہمیت دی ہے۔ معاشرے کی حقیقی خوبصورتی اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس میں کمزور، ناتواں بچے، یتیم، شاگرد، ملازم، غریب اور ہم سے عمر میں چھوٹے افراد کو عزت، پیار اور تحفظ دیا جائے۔ چھوٹوں پر شفقت صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایک عظیم اسلامی تعلیم ہے جو دلوں کو جوڑتی، نفرتیں کم کرتی اور معاشرے کو امن و محبت کا گہوارہ بناتی ہے۔ چھوٹے افراد اکثر اپنے بڑوں کی طرف دیکھ کر سیکھتے ہیں، ان کے دل نازک ہوتے ہیں، ان کی سوچ ابھی مکمل نہیں ہوتی، انہیں رہنمائی، توجہ اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بڑے ان کے ساتھ سختی، تحقیر، بے رخی سے پیش آئیں تو ان کے اندر احساس کمتری، خوف، بغاوت اور نفسیاتی الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر ان کے ساتھ پیار، نرمی، احترام اور برداشت کا رویہ رکھا جائے تو وہ خود اعتماد، باکردار اور ذمہ دار انسان بن جاتے ہیں۔ اس لیے چھوٹوں پر شفقت دراصل آنے والی نسلوں کی تعمیر ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بھی نرمی اور رحم دلی کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ رسول اکرم کی سیرت طیبہ اس بارے میں بہترین نمونہ ہے۔ اب بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے، ان کے سر پر دست شفقت رکھتے، انہیں دعائیں دیتے، ان کی دلجوئی کرتے اور ان کی بات کو غور سے سنتے۔ ایک مرتبہ اب ایک بچے کے پاس گزرے تو اسے سلام کیا، حالانکہ وہ عمر میں بہت چھوٹا تھا۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ چھوٹوں کو نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ انہیں اہمیت دی جائے۔ اپنے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس ارشاد میں چھوٹوں پر شفقت کی عظمت اور اس کی دینی اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ گھر وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں بچہ اچھے برے اخلاق سیکھتا ہے۔ اگر والدین اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت، نرمی اور انصاف سے پیش آئیں تو بچے محبت کرنا، ادب کرنا اور سچ بولنا سیکھتے ہیں۔ ماں باپ کا پیار بچے کے لیے زندگی کی پہلی ضرورت ہے۔ اگر بچہ بار بار ڈانٹ، مار اور تانا سنے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنے گھر کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر والدین اس کی غلطی کو سمجھداری سے درست کریں، اس کی بات سنیں، نون نہ اور اسے عزت دیں تو بچہ اعتماد کے ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ یوں گھر محبت، سکون اور تربیت کا مرکز بن جاتا ہے۔ بڑے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی بہت اہم ہے۔ اکثر گھر میں بڑے بہن بھائی چھوٹوں سے سختی سے پیش آتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کی کمزوری پر ہنستے ہیں۔ یہ رویہ بہت غلط ہے۔ بڑے بہن بھائی اگر چھوٹوں کے لیے مثال بنے، ان کے ساتھ کھیلے ہوئے سکھائیں، ان کی غلطیوں کو نرمی سے سمجھائیں اور ان کی حفاظت کریں تو یہ ایک بہترین خاندانی ماحول پیدا کرتا ہے۔ چھوٹے بہن بھائی اپنے بڑوں کو آئیڈیل مانتے ہیں، اس لیے بڑے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو مثبت اور باوقار بنائیں۔ ان کی شفقت چھوٹوں کی شخصیت میں اعتماد، محبت اور اچھے اخلاق پیدا کرتی ہے۔ اسکول اور مدرسے میں چھوٹوں پر شفقت بہت ضروری ہے۔ ایک استاد کا مقام صرف پڑھانے تک محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے۔ اگر استاد اپنے چھوٹے شاگردوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، ان پر بیجا سختی کرے یا ان کی کمزور کارکردگی پر انہیں شرمندہ کرے تو وہ علم سے دور ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر استاد ان کی غلطی کو اصلاح کا موقع سمجھے، انہیں حوصلہ دے، ان کی صلاحیتوں کو پہچانے اور نرم لہجے میں رہنمائی کرے تو بچہ علم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح بڑے طلباء کو بھی چھوٹے طلباء کے ساتھ شفقت، مدد اور بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں محبت کا ماحول ہی بہتر تعلیم اور بہتر کردار پیدا کرتا ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کے جذبات کو سمجھا جائے۔ بچہ کم عمر شخص جب کسی مسئلے سے گزرتا ہے تو وہ اسے بڑے لوگوں کی طرح بیان نہیں کر پاتا۔ بعض اوقات وہ خاموش ہو جاتا ہے، کبھی ضد کرتا ہے، کبھی روتا ہے اور کبھی غلط حرکت کر دیتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کے رویے کو فوراً بدتمیزی کہہ دینا درست نہیں، پہلے اس کی کیفیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ ڈر، بے چینی، بھوک، تھکن یا کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی حالت کو محسوس کریں اور اس کی مدد کریں۔ جو لوگ چھوٹوں کے دل کی بات سمجھ لیتے ہیں وہ اصل میں بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں چھوٹوں پر شفقت کا دائرہ صرف گھر، ہائی اسکول تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ بازار، مسجد، محلہ، سواری دفتر، ہر جگہ چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ ہمارے سامنے کوئی غلطی کر دے تو اسے ہنسی کا نشانہ بنانے کے بجائے سمجھایا جائے،
अगर कोई कम उम्र मुलाजिम हो तो इससे बदतमीजी न की जाए, अगर कोई छोटा राहगीर हो तो इसे धक्का ना दिया जाए, अगर कोई बच्चा मस्जिद में आए तो इसे डांटने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता आदाब सिखाया जाए। इसी तरह बुजुर्गों को चाहिए कि वो अपनी गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें जो छोटों की इज्जत को मजरू करें। नरम ज़ुबान, मुस्कुराहट और अच्छा लहजा छोटों के दिल में मोहब्बत पैदा करता है। छोटों पर शफकत का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे नस्लों में अच्छा किरदार मुंतकिल होता है। जो बच्चा बचपन में प्यार, इज्जत और तरबियत पाता है वो बड़ा होकर दूसरों के साथ भी वैसा ही सलूक करता है। लेकिन जो बच्चा सख्ती, तहकीर और नफरत के माहौल में पलता है वो आ तो खुद सख्त दिल बन जाता है या लोगों से दूरी इख्तियार कर लेता है। इसलिए छोटों पर शफकत सिर्फ मौजूदा वक्त की ज़रूरत नहीं बल्कि मुस्तकबिल की ज़मानत है। एक मेहरबान बच्चा एक मेहरबान नौजवान बनता है और एक मेहरबान नौजवान एक अच्छा मुसलमान, अच्छा शहरी और अच्छा इंसान बनता है। शफकत का मतलब ये नहीं कि हर बात में छोटों की हर जिद मान ली जाए। शफकत के साथ तरबियत भी ज़रूरी है। नरमी और मोहब्बत के साथ उसूल सिखाना ही हकीकी तरबियत है। अगर कोई बच्चा गलत करे तो इसे मारने से पहले समझाया जाए, इसकी वजह पूछी जाए और फिर मोहब्बत के साथ इस्लाह की जाए। इस्लाम तवाज़ुन सिखाता है, ना तो ऐसी सख्ती के दिल टूट जाए और ना ऐसी नरमी के तरबियत ख़त्म हो जाए। असल कमाल ये है कि शफकत के दायरे में रहते हुए इस्लाह की जाए। ये वो अंदाज है जो रसूल अकरम की सीरत में वाज़े तौर पर नजर आता है। आज के दौर में छोटों पर शफकत की अहमियत और भी बढ़ गई है। जदीद जिंदगी में बच्चे और कम उम्र अफराद मुख्तलिफ दबाव का सामना करते हैं। तालीमी दबाव, मुकाबले का माहौल, सोशल मीडिया, घर की मसरूफियात और जज्बाती तन्हाई उन्हें मुतासिर करती है। ऐसे में अगर बड़ों का रवैया भी सख्त हो तो वो मजीद परेशान हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी बातें सुनें, उनकी दिलचस्पियों को समझें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं। सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि साथ देना भी शफकत का हिस्सा है। छोटों पर शफकत का एक खूबसूरत पहलू दुआओं में भी नजर आता है। जब बड़े छोटों के लिए खैर मांगते हैं, उनके लिए कामयाबी, नेकी, इल्म, सेहत और हिदायत की दुआ करते हैं तो ये उनके हक में बहुत बड़ी मोहब्बत होती है। दुआ इंसान के लिए सबसे कीमती तोहफा है। वालिदैन, असातिज़ा और बड़े बहन भाई अगर छोटों के लिए दुआगो रहें तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल देता है। इसी तरह छोटों को भी चाहिए कि वो बड़ों का अदब करें, क्योंकि शफकत और अदब दोनों मिलकर एक खूबसूरत मुआशरा बनाते हैं। छोटों के साथ शफकत करने वाला शख्स दरअसल अल्लाह ताला की रहमत का मजहर बनता है। दुनिया में ऐसे लोगों की कदर होती है जो कमज़ोरों का सहारा बने, बच्चों का दिल ना दिखाएं और अपनी बड़ाई का गलत इस्तेमाल ना करें। ताकतवर होने का असल हसन यही है कि आदमी अपनी ताकत को नरमी और खैर के लिए इस्तेमाल करे। अगर एक बड़ा शख्स छोटे को इज्जत देता है, इसकी बात सुनता है और उसकी रहनुमाई करता है तो वो सिर्फ एक फर्द की मदद नहीं करता बल्कि एक नस्ल की तामीर करता है। यही वजह है कि इस्लाम ने रहम, अदल और एहसान को बार बार बयान किया है। आज हमें अपने घरों, मदारिस, स्कूलों और मुआशरे में माहौल बनाना होगा कि छोटा महफूज महसूस करे, इसे ये मालूम हो कि इसकी बात सुनी जाएगी, इसकी गलती को समझा जाएगा और उसके साथ इंसाफ किया जाएगा। जब बच्चे ऐसे माहौल में परवान चढ़ते हैं तो इनमें झूठ, चोरी, जिद, बदतमीजी और खौफ कम होता है। वो सच बोलने, अदब करने, जिम्मेदारी निभाने और दूसरों का ख्याल रखने वाले इंसान बनते हैं। यही वो तरबियत है जो कौमों को बुलंद करती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि छोटों पर शफकत एक ऐसा अजीम इखलाकी वस्फ है जो ईमान, इंसानियत और तहजीब तीनों का हसन है। जो शख्स छोटों से प्यार करता है, उनकी इज्जत करता है और उनकी इस्लाह नरमी से करता है, वो दरअसल अल्लाह और उसके रसूल की तालीम पर अमल करता है। हमें चाहिए कि हम अपने रवैयों पर नज़र डालें, अपनी ज़ुबान को नरम करें, अपने हाथ को शफकत का हाथ बनाएं और अपने दिल में कमज़ोरों के लिए जगह पैदा करें। अगर हम छोटों पर शफकत को अपनी आदत बना लें तो हमारे घर जन्नत का नमूना बन सकते हैं, हमारे स्कूल अमन के मरकज़ बन सकते हैं और हमारा मुआशरा मोहब्बत, एहतराम और भाईचारे से रोशन हो सकता है। अल्लाह ताला छोटों पर शफकत करने, उनके हुकूक अदा करने और रसूल अकरम की सच्ची संगत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
چھوٹوں پر شفقت اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسان کو صرف عبادت ہی نہیں سکھاتا بلکہ اچھے اخلاق، نرم گفتاری، محبت، ہمدردی اور رحمت کا درس بھی دیتا ہے۔ ان اخلاق حسنہ میں ایک نہایت اہم اور خوبصورت صفت چھوٹوں پر شفقت ہے۔ چھوٹوں سے مراد صرف عمر میں کم لوگ نہیں بلکہ وہ تمام افراد ہیں جو کسی نہ کسی لحاظ سے ہم سے چھوٹے ہوں، خواہ وہ بچے ہوں، شاگرد ہوں، کمزور ہوں، گھر کے چھوٹے افراد ہوں یا معاشرے کے لوگ ہوں جنہیں توجہ، تربیت اور محبت کی ضرورت ہو۔ چھوٹوں پر شفقت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل کو نرم، گھر کو خوشگوار، معاشرے کو پرامن اور آنے والی نسلوں کو بااخلاق بناتا ہے۔ شفقت کا مطلب ہے دل کی نرمی، مہربانی، محبت اور دوسروں کے لیے خیر خواہ۔ جب کوئی بڑا شخص چھوٹوں کے ساتھ محبت، نرمی اور عزت کا سلوک کرتا ہے تو وہ ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ بچے اور کم عمر افراد الفاظ سے زیادہ رویے سے سیکھتے ہیں۔ اگر انہیں سختی، ڈانٹ، نفرت، بے توجہی ملے تو ان کے دل میں خوف اور محرومی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر انہیں شفقت، توجہ اور محبت ملے تو ان کی شخصیت میں اعتماد، خوش اخلاقی اور نیکی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے چھوٹوں پر شفقت کو صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایک تربیتی ضرورت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسلام نے چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ رسول اکرم کی سیرت طیبہ اس کی روشن مثال ہے۔ اب بچوں سے محبت فرماتے، انہیں سلام کرتے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کی بات غور سے سنتے اور ان کے دل نہ دکھاتے۔ آپ کا انداز یہ تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ ایسا سلوک فرماتے جس سے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو بلکہ ان میں اپنائیت پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی چھوٹوں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ اسلام کا پیغام بھی یہی ہے کہ جو بڑا ہو وہ چھوٹے پر رحم کرے، کیونکہ رحم کرنے والا ہی دراصل اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ بچپن اور کم عمری انسان کی شخصیت کی بنیاد رکھتی ہے۔ ایک بچہ جو محبت بھرے ماحول میں پروان چڑھتا ہے وہ عموماً زیادہ پرسکون، پراعتماد اور باادب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو بچہ مسلسل سختی، طعنہ زنی، ذلت کا شکار ہو، اس کے اندر و بغاوت پیدا ہوتی ہے یا کم ہمتی۔ اس لیے والدین، اساتذہ، بڑے بہن بھائی، رشتہ دار اور معاشرے کے تمام ذمہ دار افراد پر لازم ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں۔ یہ شفقت صرف جذباتی نہیں ہونی چاہیے بلکہ عملی بھی ہونی چاہیے، یعنی ان کی ضروریات کا خیال، ان کی غلطیوں کی اصلاح، ان کی بات سننا، ان کی رہنمائی کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی شفقت میں شامل ہے۔ گھر میں چھوٹوں پر شفقت سب سے پہلے والدین سے شروع ہوتی ہے۔ والدین اگر اپنے بچوں سے محبت، نرمی اور دعا کا تعلق رکھیں تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور باپ کا کردار بچے کے لیے اعتماد کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ جب باپ اپنے بچوں سے سختی کی بجائے نرمی سے بات کرتا ہے اور ماں اپنے بچوں کی معمولی باتوں کو بھی اہمیت دیتی ہے تو بچے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ محفوظ بچہ بہتر سیکھتا ہے، اچھے اخلاق اپناتا ہے اور بڑوں کا احترام کرنا جانتا ہے۔ اسی طرح بڑے بہن بھائیوں کا رویہ بھی چھوٹوں کی تربیت میں بہت اثر رکھتا ہے۔ اگر بڑے بہن بھائی چھوٹوں کو پیار کریں، رہنمائی کریں اور ان کی خطاؤں پر مذاق کی بجائے سمجھائیں تو گھر کا ماحول محبت اور اعتماد سے بھر جاتا ہے۔ اسکول اور مدرسے میں بھی چھوٹوں پر شفقت کی بہت ضرورت ہے۔ اساتذہ قوم کے معمار ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں آنے والے بچے مستقبل کے ڈاکٹر، استاد، تاجر، عالم اور رہنما بن سکتے ہیں۔ ایک شفیق استاد اپنے شاگردوں کو صرف کتابی علم نہیں دیتا بلکہ کردار کی تربیت بھی دیتا ہے۔ اگر استاد بچے کو غلطی پر ذلیل کرے تو بچہ علم سے متنفر ہو سکتا ہے، لیکن اگر استاد نرمی سے سمجھائے تو وہی غلطی اس کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ہر غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصلاح اس انداز سے کی جائے جو ان کے دل کو توڑنے کے بجائے جوڑے۔ تربیت میں نرمی، حکمت اور وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ معاشرے میں بھی چھوٹوں پر شفقت ایک بڑی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں بچے اور نوجوان طرح طرح کے دباؤ کا شکار ہیں۔ انہیں بعض اوقات گھر میں سکون نہیں ملتا، اسکول میں توجہ نہیں ملتی اور معاشرے میں بھی ان کی صحیح رہنمائی ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ غلط سمت میں چلے جاتے ہیں۔ اگر معاشرہ چھوٹوں کو محبت، عزت اور بہتر ماحول دے تو وہ نیکی، خدمت اور خیر کے راستے پر بڑھتے ہیں۔ بازار میں، محلے میں، مسجد میں، سڑک پر اور ہر جگہ بڑے لوگوں کو چھوٹوں کے ساتھ نرم اور مہذب برتاؤ اختیار کرنا چاہیے۔ بچوں کو ڈرانے، دھمکانے، حقارت سے دیکھنے کے بجائے انہیں اچھا راستہ دکھانا چاہیے۔ یہ رویہ صرف انسانیت ہی نہیں بلکہ دینی ذمہ داری بھی ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نسلوں میں اچھائی
होती है। जो बच्चा खुद शफकत देखकर बड़ा होता है वो आगे चलकर दूसरों पर शफकत करता है। यूं मोहब्बत का एक सिलसिला कायम हो जाता है। एक शफीक बाप का बेटा शफीक इंसान बनता है। उस्ताद का शागिर्द दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है और एक मोहब्बत करने वाली माँ की औलादा अपने बच्चों के साथ इसी मोहब्बत को दोहराया करती है। इस तरह मुआशरे में एक खूबसूरत तहजीब जन्म लेती है। छोटों पर शफकत दरअसल आइंदा नस्ल की शख्सियत साजी है। ये अमल वक्ती नहीं बल्कि दूर रस असरात रखता है। हमें ये भी समझना चाहिए कि छोटों पर शफकत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि जानवरों और कमज़ोर मखलूक़ात के साथ नरमी भी इसी अखलाक का हिस्सा है। लेकिन इंसानों में ख़ास तौर पर बच्चों और कम उम्र अफराद के हुकूक ज़्यादा हैं क्योंकि वो अभी अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। उनकी मासूमियत हमारी जिम्मेदारी को बढ़ा देती है। जब कोई शख्स बच्चे को रोता हुआ देखकर इसकी मदद करे, इसके खौफ को दूर करे, इसकी गुमशुदा चीज़ तलाश करने में मदद दे, इसके मसले को संजीदगी से ले, तो ये सब शफकत की अमली सूरतें हैं। छोटे अक्सर अपनी बात को पूरी तरह बयान नहीं कर पाते, इसलिए बड़े लोगों को उनकी खामोशी, उनके चेहरे के तासुरात और उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक और अहम बात यह है कि छोटों पर शफकत का मतलब कमज़ोर तरबियत नहीं है। बाज़ लोग समझते हैं कि अगर बच्चों को हर वक्त नरमी दी जाए तो वो बिगड़ जाएंगे, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। शफकत और लाड में फ़र्क है। शफकत वो है जिसमें मोहब्बत के साथ उसूल भी हों। बच्चा जब गलती करे तो इसे प्यार से समझाया जाए, इसे बात का सबब बताया जाए और उसकी इस्लाह की जाए। इस तरह वो सीखता है कि मोहब्बत के साथ नज़्म व ज़ब्त भी ज़रूरी है। असल शफकत वो है जो इंसान को संवारे, ना कि इसकी गलती को हमेशा के लिए बढ़ा दे। इसलिए तरबियत में एतदाल बहुत अहम है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने भी बच्चों की दुनिया बदल दी है। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने छोटों के जहनों पर गहरा असर डाला है। इसलिए शफकत का एक पहलू ये भी है कि उनकी सही निगरानी की जाए। उन्हें बेलगाम छोड़ देना भी जुल्म है और हर वक्त सख्ती करना भी जुल्म है। उनके लिए वक्त मुकर्रर किया जाए, उनके साथ बात की जाए, उनके मशागिल को समझा जाए और उनकी ज़हनी व इखलाकी तरबियत की जाए। शफकत सिर्फ प्यार भरे अल्फाज नहीं बल्कि जिम्मेदाराना रहनुमाई भी है। जो बड़ा शख्स छोटे की दुनिया को समझकर उसकी हिफाजत करे वही सच्चा मेहरबान है। छोटों पर शफकत से एक और फ़ायदा ये होता है कि इंसान का अपना दिल नर्म रहता है। जो शख्स बच्चों के साथ हसन सलूक करता है इसके अंदर गुरूर, सख्ती और खुद गर्जी कम हो जाती है। बच्चों की मासूमियत इंसान के अंदर छपी हुई सख्ती को पिघला देती है। उनकी हंसी, उनकी मासूम बातें और उनकी ज़रूरतें इंसान को इंसानियत का दर्स देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो छोटों पर रहम नहीं करता इसका दिल सख्त हो जाता है। दिल की नरमी अल्लाह की बड़ी नेमत है और उस नेमत की हिफाजत छोटों के साथ अच्छे सलूक से होती है। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटों पर शफकत के अमली तरीक़े अपनाने चाहिए। उनसे नरमी से बात करना, उनके सवालात का जवाब देना, उनकी गलती पर उनका मजाक ना उड़ाना, उनकी कामयाबी पर खुश होना, उनकी मदद करना, उनके लिए दुआ करना, उनके जज्बात की कदर करना और उन्हें अपने फैसलों में मुनासिब जगह देना, ये सब शफकत की निशानियां हैं। घर में अगर छोटा बच्चा किसी चीज़ से डर जाए तो इसे तसल्ली दी जाए। अगर वो गिर जाए तो इस पर हंसने की बजाय इसे उठाया जाए। अगर वो कुछ सीखना चाहे तो इसकी हौसला अफजाई की जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर उनके असरात बहुत बड़े होते हैं। आखिर में ये कहा जा सकता है कि छोटों पर शफकत एक ऐसा अजीम अखलाक है जो दीन, इंसानियत, तहजीब और मुआशरत सब के लिए ज़रूरी है। इससे मोहब्बत पैदा होती है, तरबियत होती है, एतमाद बढ़ता है और मुआशरा खूबसूरत बनता है। जो कौमें अपने छोटों से प्यार करती हैं, उनकी सही तरबियत करती हैं और उन्हें इज्जत देती हैं, वही कौमें तरक्की करती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने घरों, स्कूलों, दफ्तरों, बाजारों और हर जगह छोटों के साथ शफकत का रवैया इख्तियार करें। यही रसूल अकरम की तालीम है, यही इस्लाम की रूह है और यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। अगर हम छोटों पर शफकत करना सीख जाएं तो हमारे दिल नर्म होंगे, हमारे घर पुरसुकून होंगे और हमारा मुआशरा मोहब्बत व खैर का गहवारा बन जाएगा। छोटों पर शफकत इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल और हुसैन दीन है जो इंसान के दिल में मोहब्बत, रहमत, नरमी, उखुवत और हमदर्दी के जज्बात पैदा करता है। इस दीन की बुनियादी तालीम यही है कि इंसान से अपने लिए न जिए बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी, भलाई और खैर खाई का सबब बने। उन्हीं आला इखलाकी सिफात में से एक बहुत अजीम सिफत छोटों पर शफकत है। छोटे ख्वाबो उम्र में हो रुतबे में
तजर्बे में उनके साथ नरमी, मोहब्बत और रहमत का बर्ताव इंसान के अच्छे किरदार की अलामत है। जो शख्स छोटों पर शफकत करता है वो दरअसल अपने अंदर इंसान इस्लामियत और अखलाक की सच्चाई को जाहिर करता है। छोटों पर शफकत सिर्फ एक इखलाकी खूबी नहीं बल्कि एक दीनी जिम्मेदारी भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों, कमज़ोरों, यतीम, गुलामों, मिस्कीनों और हर इस शख्स के साथ हसन सलूक की तालीम दी है जो मुआशरे में किसी न किसी सूरत में कमज़ोर है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत तैयबा में छोटों के लिए बेशक शफकत, नरमी, मुस्कुराहट और मोहब्बत के वाक़यात मिलते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को गोद में लेते, इनसे मोहब्बत से बात करते, उनके सर पर हाथ फेरते, उनकी दिल आज़ारी से बचते और उनकी फितरी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। यही वजह है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी सरापा रही कि छोटों पर शफकत का मतलब यह है कि उनके साथ सख्ती, हक़ारत, गुस्सा और जुल्म से बचा जाए। उनकी कमजोरी को अपनी ताकत का निशाना न बनाया जाए बल्कि उनकी रहनुमाई, नरमी और मोहब्बत से की जाए। छोटे बच्चे नाजुक दिल रखते हैं, वो बड़ी जल्दी मुतासिर होते हैं। उनके एक एहसास को भी नज़रअंदाज करना कभी कभी उनके दिल में मुस्तकिल जख्म छोड़ देता है। इसलिए असातिज़ा, बड़े बहन भाई, रिश्तेदार और मुआशरे के तमाम जिम्मेदार अफराद पर लाजिम है कि वो उनके साथ शफकत, सब्र और प्यार से पेश आएं। इस्लामी तालीमात में शफकत की बहुत बड़ी अहमियत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नरमी को पसंद फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उम्मत के लिए नर्म दिल और रहमत बनाया। जब एक मुसलमान अपने छोटों पर शफकत करता है तो वो अल्लाह की इस सिफत रहमत का मजहर बनता है जिसे अल्लाह ताला अपने बंदों में देखना पसंद फरमाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। इस तालीम से मालूम होता है कि ओहे पर शफकत महज अच्छा रवैया नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी की निशानी है। घर में छोटों पर शफकत का आगाज वालिदैन से होता है। माँ बाप अगर बच्चों से मोहब्बत, नरमी और तवज्जो से पेश आएं तो बच्चे भी मोहब्बत, अदब और एतमाद सीखते हैं। घर का माहौल बच्चे की पहली दरसगाह होता है। अगर घर में छोटों को डांट, मार, तंज और बेतवज्जोही मिले तो उनकी शख्सियत में खौफ, जिद और तलखी पैदा हो सकती है। इसके बरक्स अगर उनकी बात सुनी जाए, उनकी गलतियों को समझा जाए, उनकी छोटी कामयाबियों की तारीफ की जाए और उनके एहसासात की कदर की जाए तो वो खुद एतमादी, हया, अदब और अखलाक के साथ बड़े होते हैं। बड़े बहन भाइयों की भी अहम जिम्मेदारी है कि वो छोटे बहन भाइयों के साथ मोहब्बत और रहनुमाई का बर्ताव करें। अक्सर देखा जाता है कि बड़े अपनी बड़ाई का गलत इस्तेमाल करते हैं, छोटों को हकीर समझते हैं या उनकी बात का मजाक उड़ाते हैं। रवैया न सिर्फ गलत है बल्कि घर के रिश्तों में दूरी पैदा करता है। बड़े बहन भाई अगर छोटों के साथ शफकत करें, उनकी मदद करें, उनको पढ़ाएं, उनकी गलती पर समझाएं और उनके लिए मिसाल बने तो खानदान में मोहब्बत और एतमाद बढ़ता है। छोटा बच्चा अपने बड़े बहन भाई को अपना हीरो समझता है, इसलिए इसके सामने बेहतरीन किरदार पेश करना ज़रूरी है। स्कूल और मदरसे में भी छोटों पर शफकत बहुत अहम है। उस्ताद का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि तरबियत करना भी है। एक अच्छा उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट कर नहीं बल्कि मोहब्बत, सब्र और हिकमत से सिखाता है। खास तौर पर छोटे बच्चों को समझाने में सख्ती से ज़्यादा नरमी मुअस्सिर होती है। अगर उस्ताद छोटे तालिब इल्म को बार बार जलील इसके सामने इसे बेइज्जत करे या इसकी कमजोरी का मजाक बनाए तो वो बच्चा इल्म से दूर हो सकता है। लेकिन अगर उस्ताद इसकी छोटी गलती को हिकमत से दुरुस्त करे, इसकी हौसला अफजाई करे और इसमें आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करे तो वही बच्चा बड़ा होकर कामयाब इंसान बन सकता है। छोटों पर शफकत का एक बड़ा पहलू उनकी ज़हनी और जज्बाती ज़रूरतों को समझना है। हर बच्चा सिर्फ खाना, कपड़ा और तालीम नहीं चाहता बल्कि इसे तवज्जो, मोहब्बत, सुने जाने का एहसास और हिफाजत की ज़रूरत भी होती है। जब कोई बड़ा इसकी बात गौर से सुनता है, इसके सवालात को संजीदगी से लेता है और उसके खौफ को कम करता है तो बच्चा अपने आप को महफूज महसूस करता है। बच्चे के दिल में अगर ये एहसास पैदा हो जाए कि बड़े अलिफ सीन के साथ हैं तो उसकी शख्सियत मजबूत और मुतवाजिन बनती है। इसके बरक्स बेएतनाई बच्चे के दिल में तन्हाई पैदा करती है। शफकत की एक और शक्ल ये है कि छोटों की गलतियों पर सब्र किया जाए। बच्चे फितरी तौर पर सीखने के मरहले में होते हैं, वो खेलते हैं, पूछते हैं, बार बार गलती करते हैं
और बाज़ औक़ात ज़िद भी करते हैं, ये उनकी फितरत का हिस्सा है, इसलिए इनसे बालिगों जैसी समझदारी की तवक्को करना मुनासिब नहीं। जो बड़ा उनकी उम्र और समझ के मुताबिक रवैया इख्तियार करता है, वही हकीकी मानी में मेहरबान है। हर गलती पर चीखो मारना या बद्दुआ देना तरबियत नहीं बल्कि नुकसान है। बेहतर तरीका यह है कि उनकी गलती की वजह समझी जाए और प्यार से इस्लाह की जाए। छोटों पर शफ़क़त के मुआशरती फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा मुआशरा जहाँ बच्चे मोहब्बत से पले, वहाँ मुस्तक़बिल में नरम दिल, ज़िम्मेदार और बाइख़लाक़ अफ़राद पैदा होते हैं। छोटों के साथ जुल्म और सख्ती एक ज़ालिम नस्ल पैदा कर सकती है, जबकि शफ़क़त और एहतराम एक मुतवाज़िन, मुस्बत और खिदमत गुजार नस्ल को जन्म देता है। जो बच्चा अपनी बचपन में मोहब्बत देखता है, वो बड़ा होकर दूसरों के लिए भी मोहब्बत बांटता है। इसी तरह जो बच्चा हक़ारत और सख्ती देखता है, इसके अंदर गुस्सा, बेज़ारी और इंतकाम का जज्बा पैदा हो सकता है। लिहाजा छोटों पर शफ़क़त दरअसल आने वाली नस्ल की तामीर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस मौजू पर बेहतरीन नमूना है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ निहायत मोहब्बत से पेश आते थे। कभी किसी बच्चे को देखकर मुस्कुरा देते, कभी इसे अपने पास बिठा लेते, कभी इसके लिए दुआ फरमाते और कभी इसकी दिल जोई करते। एक मर्तबा एक बच्चे का परिंदा मर गया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके गम में शरीक होकर उसके दिल को तसल्ली दी। ये अंदाज बताता है कि बच्चों के जज्बात भी अहम हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते वक्त भी अगर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते तो नमाज मुख्तसर फरमा देते ताकि इसकी माँ को तकलीफ ना हो। ये छोटों और कमज़ोरों के लिए आपकी अजीम रहमत थी। छोटों पर शफ़क़त सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं, इसमें हर वो शख्स शामिल है जो उम्र, इल्म, मकाम और ताकत में हमसे कम है। नई सोच रखने वाले, कम तजर्बाकार लोग, नो उम्र शागिर्द, नौकरी शुरू करने वाले या किसी मसले में नातजर्बाकार अफराद सब इस दायरे में आते हैं। उनके साथ तहकीर नहीं बल्कि रहनुमाई ज़रूरी है। कभी कभी एक नर्म लफ्ज़, एक मुस्कुराहट, एक हौसला ज़ा जुमला किसी छोटे के लिए ज़िंदगी बदलने वाला साबित होता है। इसलिए बड़े लोगों को अपनी ज़बान और रवैये पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। शफ़क़त का मतलब कमज़ोरी नहीं। बाज़ लोग समझते हैं कि नरमी दुखाना अपनी बात मनवाने में कमी है, हालांकि हकीकत यह है कि शफ़क़त में बड़ी ताकत होती है। सख्ती वक्ती तौर पर असर डाल सकती है, मगर मोहब्बत दिलों को बदलती है। छोटों की इस्लाह करते वक्त मोहब्बत के साथ उसूल भी ज़रूरी हैं। शफ़क़त का सही मतलब यह है कि नरमी के साथ तरबियत की जाए, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हुदूद भी कायम की जाए, मगर दिल आज़ारी के बगैर। असल कामयाबी वही है जो बच्चे के दिल को तोड़े बगैर इसे सही रास्ते पर ले आए। आज के दौर में छोटों पर शफ़क़त की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है। जदीद मसरूफ़ ज़िंदगी, मोबाइल कल्चर, माशी दबाव और घर के कमज़ोर रिश्तों ने बच्चों को कई मसाइल में मुब्तला कर दिया है। बहुत से बच्चे वालिदैन की तवज्जो से महरूम हैं, कुछ सख्त लहजे से परेशान हैं और कुछ जज्बाती तन्हाई का शिकार हैं। ऐसे माहौल में शफ़क़त एक दवा की तरह है। अगर घर के बड़े और मुआशरे के जिम्मेदार लोग बच्चों को वक्त दें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी रहनुमाई करें और उनकी दिल आज़ारी से बचें, तो बहुत से इखलाकी और नफ्सियाती मसाइल कम हो सकते हैं। इस सिफत को अपनाने के लिए हमें अमली कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपनी ज़ुबान नरम बनानी होगी, फिर छोटों की बात सुनने की आदत डालनी होगी, उनकी गलती पर तंज के बजाय इस्लाह करनी होगी, उनकी कामयाबी पर तारीफ करनी होगी, उनके दिल में अपनी अहमियत मोहब्बत के जरिए पैदा करनी होगी, खौफ के जरिए नहीं। इसी तरह हमें अपने घरों में ऐसा माहौल बनाना होगा जहां बच्चे एतमाद के साथ बात कर सकें और अपनी ज़रूरियात बयान कर सकें। जब घर में ये माहौल होगा तो बच्चे दूसरे लोगों के साथ भी अच्छा रवैया रखेंगे। आखिर में ये कहा जा सकता है कि छोटों पर शफ़क़त एक ऐसी खूबी है जिससे दिलों में मोहब्बत, घरों में सुकून, मुआशरे में अमन और नस्लों में अखलाक पैदा होते हैं। ये सिर्फ एक इखलाकी हसन नहीं बल्कि इस्लामी तालीमात की रूह है। जो शख्स छोटों पर रहम करता है वो दरअसल अपने अंदर के ईमान को जिंदा करता है। जो बच्चे आज शफ़क़त के साए में पलेंगे वो कल एक बेहतर नरम दिल और साले मुआशरे की बुनियाद बनेंगे। इसलिए हर बड़े को चाहिए कि वो अपने दिल में नरमी, अपने लहजे में मोहब्बत, अपने हाथ में शफ़क़त और अपने रवैये में रहमत पैदा करे। यही इंसानियत का हसन है, यही असल उनका पैगाम है और यही कामयाब मुआशरे की असल बुनियाद है। छोटों पर शफ़क़त इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल दीन है जो इंसान के हर रिश्ते, हर मामले और हर रोई की रहनुमाई करता है। इस दीन की खूबसूरती सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि अखलाक, किरदार, मुआशरत
محبت احترام عدل اور رحمت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ انہی اعلیٰ اخلاقی صفات میں سے ایک نہایت اہم صفت چھوٹوں پر شفقت ہے۔ چھوٹے چاہے عمر میں کم ہوں، چاہے رتبے میں کمزور ہوں، چاہے علم میں ابھی پختہ نہ ہوں، ان کے ساتھ نرمی، محبت، توجہ اور مہربانی سے پیش آنا ایک بہترین اسلامی اور انسانی وصف ہے۔ جو انسان چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے وہ صرف دوسروں کے دل نہیں جیتتا بلکہ اپنے کردار کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچوں، نوجوانوں، شاگردوں، چھوٹے بہن بھائیوں، کم عمر رشتہ داروں اور ہم سے کم تجربہ رکھنے والے افراد کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کی غلطیوں پر سختی کے بجائے سمجھائیں، ان کی کمزوریوں پر طنز کے بجائے حوصلہ دیں، ان کی معصومیت کا احترام کریں اور ان کے جذبات کا خیال رکھیں۔ یہ روا گھر کو محبت کا گہوارہ، مدرسے کو علم کا مرکز اور معاشرے کو امن کا باب بنا دیتا ہے۔ اسلام نے چھوٹوں سے محبت اور ان پر شفقت کو بہت اہمیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ اس کی روشن مثال ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے محبت فرماتے تھے، اب ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، ان کے سر پر دست شفقت رکھتے، ان کو پیار دیتے، ان کے سوالات کو توجہ سے سنتے اور ان کی دل آزاری سے بچتے۔ اب کا یہ انداز سکھاتا ہے کہ طاقتور ہونے کے باوجود نرم مزاج رہنا ہی اصل عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی تعلیم نہیں دی بلکہ عملی زندگی میں بھی چھوٹوں کے لیے بن کر دکھایا۔ گھر میں چھوٹوں پر شفقت کا سب سے پہلا مقام ہوتا ہے۔ اگر والدین اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت، نرمی اور صبر سے پیش آئیں تو وہ بچے بھی آگے چل کر نرم دل، فرمانبردار اور بااخلاق انسان بنتے ہیں۔ اگر گھر میں ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، مار پیٹ اور سخت لہجہ ہو تو بچے خوف زدہ، ضدی، حساس ہو سکتے ہیں۔ بچے دراصل محبت کے پیاسے ہوتے ہیں، انہیں پیار، توجہ، وقت اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ماں باپ انہیں عزت دیتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو حکمت سے درست کرتے ہیں تو ان کے دل میں والدین کی محبت اور احترام بڑھ جاتا ہے۔ بڑے بہن بھائیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں۔ کئی گھروں میں بڑے بہن بھائی چھوٹوں پر حکم چلانے لگتے ہیں، ان کی چیزیں چھین لیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کی کمزوریوں کو بے عزتی کا سبب بناتے ہیں۔ یہ رویہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ بہن بھائی اگر چھوٹوں کا دوست بن جائے، ان کے ساتھ کھیل لے، ان کی مدد کرے، ان کو نرمی سے سمجھائے اور ان کی حفاظت کرے تو گھر میں محبت بڑھتی ہے۔ چھوٹے بہن بھائی بڑے بہن بھائی کو اپنا محافظ اور سہارا سمجھتے ہیں۔ اس طرح خاندان مضبوط ہوتا ہے اور آپس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اسکول اور مدرسے میں بھی چھوٹوں پر شفقت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بڑے طلبہ اگر چھوٹے طلبہ کو تنگ کریں، ان پر ہنسی، ان کی کتابیں چھینیں یا انہیں کمتر سمجھیں تو تعلیمی ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بڑے طلبہ چھوٹوں کی رہنمائی کریں، انہیں راستہ دکھائیں، سبق سمجھائیں، ان کے سوالات کے جواب دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں تو ایک اچھا علمی ماحول بنتا ہے۔ استاد کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ کم عمر بچوں کو سختی سے نہیں بلکہ پیار اور حکمت سے تعلیم دے۔ بعض بچے شرمیلے ہوتے ہیں، بعض جلد گھبرا جاتے ہیں اور بعض کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ ایسے بچوں کے ساتھ صبر اور نرمی نہایت ضروری ہے۔ چھوٹوں پر شفقت صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو دل کو نرم کرتا ہے اور کردار کو پاکیزہ بناتا ہے۔ جو شخص بچوں کے آنسو دیکھ کر متاثر نہ ہو، چھوٹوں کی معصومیت سے خوش نہ ہو اور ان کے دکھ درد کو محسوس نہ کرے، اس کے دل میں سختی آ جاتی ہے۔ اسلام دل کی اسی سختی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان چھوٹوں کے ساتھ رحم کرتا ہے تو اس کے اندر اپنی بڑائی کا غرور کم ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اصل عزت طاقت میں نہیں بلکہ اخلاق میں ہے، اصل بلندی حکم چلانے میں نہیں بلکہ دل جیتنے میں ہے۔ چھوٹوں کی تربیت بھی شفقت ہی سے ممکن ہے۔ تربیت اور سختی میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی اصلاح کے لیے تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تنبیہ بھی محبت اور خیر خواہی کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ اگر چھوٹے بچے کوئی غلطی کریں تو ان پر چیخنے کے بجائے وجہ سمجھائی جائے، ان کے سامنے اچھا نمونہ رکھا جائے۔ بچے نصیحت سے کم اور مثال سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر بڑے خود جھوٹ بولیں، غصہ کریں، بدتمیزی کریں اور پھر بچوں سے ادب کی امید رکھیں تو یہ انصاف نہیں۔ چھوٹوں پر شفقت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بڑے خود اپنے اخلاق درست کریں تاکہ چھوٹے ان سے سیکھیں۔ معاشرے میں
छोटों पर शफकत का असर बहुत वसी होता है। एक शफीक इंसान अपने आसपास के माहौल को नरम बना देता है। इसके करीब बच्चे महफूज महसूस करते हैं, कमज़ोर अफराद इत्मीनान पाते हैं और लोग इस पर एतमाद करते हैं। इसके बरक्स सख्त, तुंदखू और बेरहम इंसान से लोग दूर रहते हैं। शफकत इंसान को महबूब बनाती है। लोग ऐसे शख्स के पास अपने बच्चे भेजने में, अपने राज बताने में और अपनी जिम्मेदारियां सौंपने में मुतमईन होते हैं। इसलिए छोटों पर शफकत सिर्फ सवाब ही नहीं बल्कि एक कामयाब समाजी रवैया भी है। तारीख में भी उन लोगों को इज्जत मिली है जो कमज़ोरों और छोटों के लिए नरम दिल थे। अजीम इंसान वही होता है जो अपने दिल में दूसरों के लिए जगह रखता हो। छोटों के साथ अच्छा सलूक करना इंसान के आला ज़र्फ होने की अलामत है। छोटों पर शफकत करने वाला इंसान दरअसल आने वाली नस्लों की तामीर करता है। आज जो बच्चा मोहब्बत, अदब और नरमी के माहौल में परवरिश पाता है, कल वही एक अच्छा शहरी, अच्छा मुसलमान, अच्छा बेटा, अच्छा भाई और अच्छा उस्ताद बन सकता है। इसलिए छोटों की परवरिश दरअसल मुस्तकबिल की तामीर है। इस मौजू में वालिदैन का किरदार सबसे अहम है। वालिदैन अगर बच्चों के सामने शफकत, सब्र और हसन सलूक का मुजाहरा करें तो बच्चे यही सीखते हैं। लेकिन अगर घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो, बड़ों में बेसब्री हो और बच्चों से नफरत, अलाताल्लुकी का बर्ताव हो तो बच्चे दिल से टूट जाते हैं। बहुत से नफसियाती मसाइल, जिद, खौफ, खुद एतमादी की कमी और झुंझलाहट की जड़ में मोहब्बत की कमी होती है। इसलिए छोटों पर शफकत उनकी ज़हनी, इखलाकी और जज्बाती नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। शफकत के कई मज़ाहिर हैं। कभी छोटे को प्यार से गोद में लेना शफकत है, कभी इसकी गलती को मुआफ़ कर देना शफकत है, कभी इसकी पसंद का ख्याल रखना शफकत है, कभी इसे वक्त देना शफकत है, कभी इसकी कामयाबी पर खुश होना शफकत है, कभी इसके खौफ को कम करना शफकत है, कभी इसकी बात तवज्जो से सुनना शफकत है। शफकत सिर्फ बड़ी बड़ी बातों का नाम नहीं, ये छोटे छोटे अमलों में जाहिर होती है। एक मुस्कुराहट, एक नरम जुमला, मायक हौसला अफजा लफ्ज़ भी किसी छोटे के दिल में खुशी की रोशनी भर सकता है। बच्चों के साथ शफकत का एक अहम पहलू उनकी इज्जत नफस है। बाज़ औक़ात बड़े लोग ये समझते हैं कि बच्चा है, इसे कुछ नहीं कह दो, वो तो समझता ही नहीं। हालांकि बच्चे बहुत हसास होते हैं, उनके दिल पर अल्फाज गहरा असर करते हैं। उनके सामने तंज, ताना, मवाजना, मजाक और जिल्लत आमेज जुमले उनके दिल को जख्मी कर देते हैं। इसीलिए बच्चों से बात करते वक्त अदब, नरमी और इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें बार बार कमतर न कहा जाए, छोटी कामयाबियों को सराहा जाए ताकि उनमें एतमाद पैदा हो। छोटों पर शफकत का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे मुआशरे में रहम, मोहब्बत और हमदर्दी पैदा होती है। जो कौम अपने बच्चों से मोहब्बत करती है वो मुस्तकबिल में मजबूत होती है। जो घरों में शफकत होती है वहाँ नफरत कम और एतमाद ज़्यादा होता है। जहाँ बच्चों को संवारा जाता है वहाँ जराइम, बदतमीजी और गुमराही के इम्कानात कम हो जाते हैं। इसीलिए ये कहना दुरुस्त है कि छोटों पर शफकत सिर्फ एक फर्द की खूबी नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की ज़रूरत है। जो लोग छोटों पर शफकत नहीं करते उनके अंदर अक्सर तकब्बुर, गुस्सा, खुद गर्जी या बेहिस्सी आ जाती है। वो हर वक्त अपनी बड़ाई चाहते हैं और दूसरों की कमजोरी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी में हर बड़ा कभी छोटा था, हर मुअल्लिम कभी शागिर्द था, हर बाप कभी बेटा था, हर उस्ताद कभी तालिब इल्म था। इसलिए आज अगर हम किसी छोटे के साथ सख्ती करें तो कल हमें भी किसी न किसी मरहले पर शफकत की जरूरत पड़ सकती है। दुनिया का हसन यही है कि जो देगा वही पाएगा। जो छोटों पर रहम करेगा इसे भी जिंदगी में रहमत मिलेगी। इस्लामी तालीमात में रहम, मोहब्बत और नरम दिली को बहुत बड़ा मकाम हासिल है। रहमत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि इबादत का हिस्सा है। जब इंसान छोटों पर शफकत करता है तो वो दरअसल अल्लाह ताला की पसंदीदा सिफ़तों में से एक सिफत अपने अंदर पैदा करता है। अल्लाह ताला खुद रहमान और रहीम है, इसलिए इसके बंदों से भी यही चाहता है कि वो एक दूसरे पर रहम करें। जो बंदा बच्चों, यतीमों, शागिर्दों और कमजोरों पर रहम करता है वो अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बन जाता है। आज के दौर में छोटों पर शफकत और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। जदीद जिंदगी की तेज रफ्तारी, मसरूफियत, मोबाइल और स्क्रीनों का ज्यादा इस्तेमाल और खानदानी ताल्लुकात में सर्द महरी ने बच्चों की जज्बाती जरूरतों को बढ़ा दिया है। आज के बच्चे को सिर्फ खाना, कपड़ा और तालीम नहीं चाहिए बल्कि इसे वक्त, तवज्जो, रहनुमाई और मोहब्बत भी चाहिए। अगर हम इसे सिर्फ मादी चीजें दें और दिल ना दें तो वो अंदर से खाली रह जाएगा। इसलिए असन हाजिर में शफकत एक जरूरत बन चुकी है। छोटों पर शफकत सिखाने के लिए हमें खुद भी अपने किरदार पर नजर डालनी चाहिए। हमें
नूनगू ना अपने घरों में बच्चों के सामने नरम लहजा इख्तियार करना चाहिए, उन्हें इज्जत देनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी फितरी मासूमियत को समझना चाहिए। हमें उनकी गलतियों पर हद से ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि इस्लाह के साथ प्यार भी देना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बच्चे सिर्फ अल्फाज नहीं हमारे अमल से भी सीखते हैं। अगर हम उनके साथ शफकत करेंगे तो वो भी आगे चलकर दूसरों पर शफकत करेंगे। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि छोटों पर शफकत एक आला इखलाकी, दीनी और इंसानी सिफत है। ये सिफत खानदान को मजबूत, मुआशरे को महज़िब और इंसान को बावकार बनाती है। जिस घर में छोटों के साथ शफकत होती है वहाँ खुशी रहती है। जिस मदरसे में शफकत होती है वहाँ इल्म बढ़ता है। जिस मुआशरे में शफकत होती है वहाँ अमन और मोहब्बत बढ़ती है। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को नरम करें, अपनी ज़ुबानों को महज़िब बनाएं, अपने हाथों को मोहब्बत देने वाला बनाएं और अपनी निगाहों को शफकत से भर लें। अगर हम वाकई एक बेहतर नस्ल, बेहतर घर, बेहतर मुआशरा और बेहतर उम्मत चाहते हैं तो हमें छोटों पर शफकत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, यही इस्लाम का पैगाम है और यही इंसानियत की असल खूबसूरती है। छोटों पर शफकत दरअसल आने वाले कल पर शफकत है और जो कौम अपने कल पर रहम करती है वही हकीकी कामयाबी हासिल करती है। अगर अब चाहें तो मैं इसी मौजू पर खूबसूरत तारुफ, नतीजा और 10 उन्वानात के साथ यूट्यूब स्क्रिप्ट भी बना दूं।